Hello everyone, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor for this whole course C++ tutorials from basic to advanced, and in day 22 of this playlist we are going to learn what is multimap, what is multiset and some example programs. Okay, so before this हम लोगों ने sets, unordered sets, map, unordered map और vectors सारे containers STL में almost पढ़ लिए. ठीक है, so ये almost लास्ट एसोसिएटिव कंटेनर है और इसके बाद हम जम करेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में और फंक्शंस में. ठीक है, फंक्शंस ऑफ एसटीएल. फाइन. तो लेट्स सी. Before starting our today's video, let's see what Newton School is. Okay, so basically Newton School is an e-learning platform. They provide you training for being a full stack developer. Okay, so basically they will provide you a training in which they will teach you different programming languages, front end and back end development and different core subjects, and then they will get you placed in these companies which are ThoughtWorks, Topper, 7-Eleven, Unacademy, Drave 11, Deloitte, Misho. Okay, so different companies. They have almost tie up with almost 300 companies of India, and the best thing is they have a pay after placement program under which you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in these companies. Okay, and they will provide you minimum package of 5 lakhs, so it is also a good thing. So you just need to come newtonschool.co and check out their pay after placement program. Now these days they also have a new initiative known as Launchpad, under which you can start learning for free. Okay, so if you are confused and if you want to just start learning, you can just come to their website under Launchpad section, sign up and start learning for free. There are different courses for different programming languages: Java, Python, C++, different core subjects, DBMS, OS, computer networks, and different front end development, back end development, everything. Okay, so just come join any course for free, get the certificate. You can also solve quizzes there, you can also participate in competitive programming events, so everything in one place. Okay, just come to newtonschool.co and check their pay after placement program and launchpad initiative. Okay, so let's start towards today's video. Okay, and before this you can also check this playlist C++ from basic to advanced, in which I have firstly taught all the basics of C++, and now we are heading towards competitive programming and standard template libraries in C++. Okay, under which we have learned map, sets, unordered map and sets, pairs, range based loops, everything. So you can subscribe this channel Code Kitchen Newton School and bookmark this playlist. I am posting one video every day. So let's start today's video. And in today's video, we are going to see multimap, multiset, and some example programs. So let's start with multimap. So as the name suggests, we have already learned map. Okay, हमने map पहले ही पढ़ लिया है. And map में हमारा क्या होता था? Map में हमारा key और value का pair होता था. What we have in map is key and value pair. Okay, so map is just an associative container जिसमें हर एक एलिमेंट एक पेयर होता था की और वैल्यू का. ओके, और उसमें हमने हर चीज देखी थी कि हम कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, कब कब यूज करना है हमें, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे हम उसे इनिशियलाइज करते हैं. तो मल्टी मैप उसी का एक मॉडिफिकेशन है, यू कैन से. फाइन. नाउ मल्टी वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है? कोई चीज मोर देन वन टाइम आ रही है. ठीक है, तो इफ वी सी इन मैप, मैप की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी? यूनिक की, सॉर्टेड ऑर्डर में की होती थी. सॉर्टेड ऑर्डर इन द सेंस डिसेंडिंग और असेंडिंग, वी कैन मॉडिफाई इट. ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर कीज. फाइन. तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे मैप की. मल्टी मैप में सिर्फ एक चेंज आता है तुम्हारा. ठीक है, यूनिक कीज की जगह तुम्हारी मोर देन वन की विद सेम वैल्यू हो सकती है. ठीक है, तो मल्टी मैप, अगर ये मैं कह दूं कि ये तुम्हारा एक मल्टी मैप कंटेनर है, दैट इज एमएम यू कैन से. ठीक है, तो इसमें की तुम्हारी 1 1 4 5 5 सेम वैल्यू की दो कीज प्रेजेंट होना पॉसिबल है. ठीक है, और उनकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं. दैट इज सिंपली मल्टी मैप. फाइन. बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं.
तुम्हारा सॉर्टेड ऑर्डर में कीज रहेंगी, ये कैरेक्टरिस्टिक सेम है, ठीक है। ओनली डिफरेंसेस सेम वैल्यूज की दो की मल्टी मैप में पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल। अब इसके वजह से हमारे कुछ जो फंक्शंस हैं मैप के, दैट इज इरेज, ओके, वो उन सब में थोड़ी सी डिफरेंट मॉडिफिकेशन आ जाता है। सिंस हमने मैप में मॉडिफाई किया है तो ये फंक्शंस भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज हो सकते हैं, तो वो हम देखते हैं वो कैसे होता है, ठीक है। बिफोर दिस लेट्स सी ऑल द सिंटेक्स एंड एवरीथिंग अबाउट मल्टी मैप एंड देन वी विल सी सम फंक्शंस ऑफ इट। तो सिंटेक्स एज आई ऑलरेडी सेड, मल्टी मैप लिख देंगे हम आगे दो ब्रैकेट्स के अंदर, उसके की और वैल्यू के डेटा टाइप एंड देन इट्स नेम, ओके। इनिशियलाइजेशन मैंने मैप में बोला था, इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी 0 से होता है, ठीक है। तो इसमें भी अगर मान लो हमें मल्टी मैप है, ये हमारा मल्टी मैप है और इसमें हमने ये दो डेटा टाइप दिए और एमएमएस की वैल्यू दी। अब हमें अगर मल्टी मैप में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? सिंपली जैसे हम मैप में करते थे सेम, एम एम डॉट इंसर्ट मेक पेयर, यहाँ पे तुम अपनी डालो की, लेट से 4 और वैल्यू डालो यहाँ पे 10, ठीक है, ये तुम्हारी वैल्यू है लेट से 10, ठीक है। नाउ तुम्हारे मैप के अंदर एक वैल्यू जा चुकी है 4 और 10, फाइन। अब ये मेक पेयर से हो क्या रहा है, तुम दो वैल्यूज दी हैं और उन दोनों वैल्यूज को तुमने बाइंड कर दिया है एक पेयर की तरह और तुमने सिंपली उसे मल्टी मैप में इंसर्ट कर दिया। यू कैन ऑल्सो डू दिस इन दिस वे, मल्टी मैप इंसर्ट एंड फॉर बाइंडिंग यू कैन यूज जस्ट कर्ली ब्रेसेस, ओके, और यहाँ पे लिख दो 4 और 10, दिस दिस एंड दिस विल वर्क सेम, ओके, फाइन। नाउ वी नो हम कैसे इंसर्ट करते हैं, सिंटेक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम सेम की, फॉर सेम की, ओके, पॉसिबल है एंड सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक। यूज यू हैव टू गेस इट योरसेल्फ, फाइन। बहुत सारे तुम्हारे आते हैं डेटाबेसेस, सपोज यू हैव सम डेटाबेस, ठीक है, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, ये है तुम्हारा नेम, ठीक है, और ये किसी डिपार्टमेंट का नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट का नेम है। अब तुम्हारा अगर डिपार्टमेंट आईटी है, ठीक है, एक का किसी का सीएसई है और दूसरे का सीएसई है, ठीक है, और किसी और का आईटी है और किसी का ईसीई है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा ए बी सी डी ई कुछ 5 लोग, तो अब अगर हम यहाँ पे मैप यूज करते तो हमारा खाली आईटी के लिए हम ए स्टोर करवा सकते थे, लेकिन हम अपने मल्टी मैप में आईटी के करस्पॉन्डिंग ए बी स्टोर करवा सकते हैं, आईटी के करस्पॉन्डिंग डीबी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो फाइन, कुछ ऐसी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। आगे चल के जब हम अपनी प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस देखेंगे कॉम्पिटिटिव के और इंटरव्यू के, तो हम उसमें मल्टी मैप का यूज करेंगे और बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, फाइन फाइन। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी एक्सेस एलिमेंट्स इन मल्टी मैप, ठीक है। तो हम इटरेट कैसे करते हैं, फॉर नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी इटरेट इन मल्टी मैप। सो दो ऑप्शंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे। पहला ऑप्शन, तुम इटरेटर ले लो, ठीक है। इटरेटर लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टी मैप लिखा मैंने, इंट इंट सपोज मेरा की और वैल्यू इन टाइप का है, दो सेमीकोलन, यहाँ पे लिखो इटरेटर, बिकॉज तुम एक इटरेटर ले लो और उसका कोई नाम, ठीक है। अब मैंने एक आईटी इटरेटर ले लिया, ठीक है। अब सपोज मुझे अपने मल्टी मैप में इटरेट करना है, तो आई कैन राइट सिंपली इटरेटर फ्रॉम एम डॉट बिगिन, एम जहां पे मेरा मल्टी मैप है, इटरेटर डज नॉट इज इक्वल्स टू एम डॉट एन और इटरेटर में प्लस प्लस, ओके। सो वी कैन सिंपली इटरेट इन दिस वे, फाइन। अब इटरेटर की जो दो वैल्यूज होती हैं, ये होती है फर्स्ट, ये होती है सेकंड, ठीक है। तो वी कैन राइट इट इन समथिंग दिस वे कि अगर हम ये वाला सिंटेक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, इटरेटर यूज कर रहे हैं, तो वी हैव टू राइट इट लाइक फर्स्ट and iterator pointing towards second, ठीक है। We can also use range based for loops. For that we can simply write auto it
नाउ अब मेरा आईटी में क्या स्टोर्ड है, एक पेयर, ठीक है, जिसपे पहली वैल्यू की है और दूसरी वैल्यू वैल्यू है। तो आई कैन सिंपली राइट इट एज आईटी डॉट फर्स्ट, आईटी डॉट सेकेंड, ठीक है, सिंपल। तो ये हमें सिंटेक्स पता चल गया, इटरेशन का, इनिशियलाइजेशन का, एवरीथिंग। नाउ अब सारे के सारे फंक्शंस सेम होते हैं, ठीक है, कुछ फंक्शंस जो डिफरेंट होते हैं मैं वो बता देता हूँ। सपोज यू हैव मल्टी मैप और तुम्हारी कुछ कीज हैं, की वन, की वन, की वन। तुम्हें ये काउंट करना है कि इसमें कितनी वन की पॉसिबल है, कितनी वन की प्रेजेंट है मल्टी मैप में। यू कैन सिंपली यूज काउंट फंक्शन, ठीक है। तो तुम मैप का नाम लिखो, फॉर सपोज एम डॉट काउंट, अंदर उसके की लिख दो, ठीक है, एंड इट विल सिंपली रिटर्न यू थ्री। की वैल्यू यहाँ पे वन है, ठीक है, तो वन की थ्री की पॉसिबल है, तो आंसर विल बी थ्री। फाइन। सेकेंड थिंग इज इरेज इन मल्टीमैप। सपोज तुम्हें कोई वैल्यू की इरेज करनी है इस मल्टीमैप से, ठीक है, तो दो वे पॉसिबल है, या तो तुम वन की सारी की इरेज कर दो, या फिर तुम वन की कोई एक ही की इरेज करो, है ना। तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, इफ यू विल राइट multimap dot erase, m dot erase, और यहाँ पे अगर तुम कोई की वैल्यू देते हो, इट विल इरेज ऑल द की फ्रॉम द मल्टीमैप, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम वन देते हो तो वन की सारी कीज इरेज कर देगा, ठीक है। नाउ इफ यू यूज इरेज इन दिस वे, लाइक m डॉट इरेज, और फिर तुमने क्या किया, मैप में तुमने कोई की फाइंड की, अब इससे होगा क्या, ये पोजीशन रिटर्न करेगा तुम्हें, ठीक है, किसी की पोजीशन। सपोज तुमने सबसे पहले वन यहाँ पे मिला, तो ये पोजीशन देगा तुम्हारे फंक्शन को, और इसकी वजह से जब जो इरेज है वो तुम्हारा खाली एक सिंगल की इरेज करेगा, ठीक है। तो ये दो वेज होती है। फाइन। अब इससे हमें मल्टी मैप को ऑलमोस्ट सारी चीजें पता चल गई। नेक्स्ट वी कैन हेड टुवर्ड्स मल्टी सेट। अगेन सेट और मल्टी सेट में वही डिफरेंस है जो मैप और मल्टी मैप में, ठीक है। सेम डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक, वी कैन हैव मोर देन वन वैल्यू विद सेम वैल्यू, ठीक है। सपोज ये मेरा अगर मल्टी सेट है तो हम इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज डाल सकते हैं, वन वन टू थ्री, ओके। कैरेक्टरिस्टिक सेम है, मोर देन वन एलिमेंट विद सेम वैल्यू इज पॉसिबल। सेकेंड थिंग, सॉर्टेड ऑर्डर। फाइन फाइन। नाउ इनिशियलाइजेशन, अगेन सेम, सिंटेक्स सेम ही है, मल्टी सेट, ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा जो भी डेटा टाइप है और नेम, मल्टी सेट का नेम। इनिशियलाइजेशन, अगेन वी कैन इंसर्ट सम एलिमेंट्स लाइक इंसर्ट वन। अब मैंने अपने मैप इन मल्टी सेट के अंदर वन डाल दिया, ठीक है। इन सेम वे यू कैन इंसर्ट ऑल द एलिमेंट्स। फाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मोर देन वन एलिमेंट विद सेम वैल्यू एंड सॉर्टेड ऑर्डर। यूज, बहुत सारे यूजेस हैं, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। भाई सपोज यू नीड समथिंग इन सॉर्टेड ऑर्डर एंड तुम्हें कोई एरे चाहिए, ठीक है, और वो सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। फाइन। एंड उसमें मोर देन वन वैल्यूज विद मोर देन वन एलिमेंट विद सेम वैल्यू पॉसिबल है। सपोज यू हैव सम एरे like this 1 1 2 5 6 and you need this array in sorted order, ठीक है। तो इसमें वन और वन अगर तुम सेट यूज करोगे तो तुम एक वैल्यू खो दोगे, ओके। देन इन दिस केस यू कैन यूज मल्टी सेट फॉर ऑपरेशन। फाइन। हाउ कैन वी एक्सेस एलिमेंट इन मल्टी सेट, अगेन वी कैन यूज इटरेटर। यू कैन सिंपली यूज इटरेटर मल्टी सेट और उसका डेटा टाइप यहाँ पे लिखो, ठीक है, और यहाँ पे दो सेमीकोलन, इटरेटर लो, सेम सिंटेक्स फॉर मल्टी सेट ऑल्सो, जैसे हमने पिछली बार मल्टी मैप के लिए देखा था, ठीक है। अदरवाइज यू कैन यूज फॉर लूप फॉर ऑटो बेस्ड लूप, ठीक है, ऑटो इटरेटर इन सेट, और अब तुम्हारे इटरेटर में वो वैल्यू आ गई, ठीक है। फाइन। तो इट विल सिंपली प्रिंट 1 1 2 5 6। फाइन। तो सेम सिंटेक्स, कोई उसमें वो है नहीं। फाइन। अगेन जैसे कि हमारा मैप और मल्टी मैप में कुछ फंक्शंस में मॉडिफिकेशन आ गया था, सेम इन मल्टी सेट और सेट में भी होगा। इरेज फंक्शन, अगेन अगर तुम्हें पूरी एक, तुम्हारे पास मल्टी सेट है, यू कैन से, ठीक है, 1 1 2 3 4, एंड इफ यू राइट a dot erase 1, it will erase all the values with 1, ठीक है। and if you write a dot erase a dot find 1, what it will do is
वो तुम्हारी फर्स्ट वैल्यू जब भी उसे वन मिलेगी उसकी पोजीशन देगा और उस वन को इरेज कर देगा। ठीक है, तो ये एक बार में एक की को एक एलिमेंट को इरेज करेगा। फाइन। अगेन यू कैन ऑल्सो यूज काउंट फंक्शन इन दिस COUNT और वन लिख दिया तो इट विल सिंपली रिटर्न 2। ठीक है, वन जितनी भी बार एलिमेंट आएगा वो रिटर्न करेगा। फाइन। तो नाउ वी नो multiset and multimap. ठीक है, let's head towards programming part and let me tell you basic syntax of this. Okay, fine. So let's say I have some size and I inputted size. Okay, now let's say I want to take some array जिसमें मेरी यूनिक वैल्यूज नहीं होंगी, डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती है। ठीक है, तो I took size as 5. मैं इसको साइज के इक्वल बना देता हूँ और बार बार मैं अपना इनपुट दूंगा। अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पर एक मल्टीसेट ले लूं। ठीक है, और उसका नाम मैप या फिर एसएस रखता हूँ मल्टीसेट। ठीक है, और इस एरे ऑफ साइज को मैं यहीं पर एसएस डॉट इंसर्ट कर दूं। ठीक है, अब मुझे सपोज ऑल दी वैल्यूज प्रिंट करनी है अपने सेट की। आई कैन सिंपली राइट इट एज आई। अब देखो मैं यहाँ पे अगर इनपुट दूं, 5 एलिमेंट्स है मेरे, 1 1 3 4 6। लेट्स से टेक इट एज 6 एलिमेंट्स। ठीक है, अब मेरा अगर मैं आउटपुट देखूं तो क्या आएगा, 1 1 3 1 सेकेंड। ये कुछ अलग सा आउटपुट आया है, क्यों आया है, मैंने साइज तो ले लिया। ठीक है, और साइज का इनपुट भी ले लिया। फाइन। नाउ मल्टीसेट मैंने एक ले लिया और मल्टीसेट में मैंने इंट और एसएस ले लिया। अब एरे डॉट साइज में मैंने 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे गलती है ना। फाइन, एंड एरे ऑफ आई मैंने इंसर्ट कर दिया। अब देखो मेरा वैल्यू क्या आया, सॉर्टेड ऑर्डर में मोर देन वन एलिमेंट विद सेम वैल्यू पॉसिबल है, 1 1 3 3 4 6। नाउ इफ आई विल यूज काउंट फंक्शन ss dot c count 1, what it will simply return is 1 कितनी बार मेरा मल्टीसेट में आ रहा है, that is 2. okay, fine. So now it will print 2 also. okay, so 1 मेरा कितनी बार आ रहा है। ठीक है, now if I will again write mm dot erase 1. okay, and now let's check what will happen. mm is not anything, I have to write here ss. Fine, sorry for that guys. see now अब मेरा वन सेट में एक भी बार नहीं बचा है, बट व्हाट, मैंने प्रिंट करने के बाद अपने सेट से इरेज किया, दैट्स व्हाई वन प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे वन को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दूं तो अब मेरा वन प्रिंट भी नहीं होगा, प्रिंट करने के पहले ही वो वन हट चुका है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नाउ योर असाइनमेंट इज use all these functions of multiset and multimap, and if you have any doubt you can ask in comment section. Again go to newtonschool.com, go their website and check their pay after placement program and launchpad initiative. They are providing you training for being a full stack developer. They will teach you everything, and then they will also get you placed in different companies of India for minimum 5 lakh CTC. Okay, so just come to their website, check their both initiative, pay after placement program and launchpad initiative. Fine, thank you guys for watching this video and subscribe this channel Code Kitchen Newton School and bookmark this playlist if you haven't done it. Thank you.